Hello, students. Good morning. You know, all students, that we have finished our previous chapter, that is electricity chapter. Okay. Now I'm going to start here a new chapter, that is magnetic effect of current. Magnetic effect of current. Okay, one thing you have to keep in your mind, by name of the chapter you can understand, by naming of the chapter you can understand that what is the meaning of chapter name, that is magnetic effect of current. Means we can say we will produce here by the help of current, that is magnetic field, that is magnetic field. This is the very important thing for keeping in your mind, that current can produce magnetic field. Okay, one thing also I'm telling here, in previous chapter I also told two kind of current. One is static, number two dynamic. One is the static current, second is the dynamic current. In the case of static current, charge particle will remain at rest position. You can say, you can take any example like that. When you will rub plastic comb with your hairs, you can see the plastic comb, dry hairs, plastic comb will attract the piece of papers towards it. So we can say there is creation of charges. One is the positive, second is the negative. That part on plastic comb, charge particle will not move to papers, towards papers. Okay, so we can say this is the static current. Dynamic current, we can say simply, I discussed with you all one definition, that is the electric current. Electric current means flow of electric charge through a wire per unit time. You can say that is the electric current. In the case of electric current, you will talk motion of the charge particle, motion of the charge particle. So in static charge particles, in static current, charge particle will remain at one point. This is also negative, this also will remain at one point. तो हम देखेंगे कि इसकी चारों तरफ इसका क्या रहेगा, फील्ड रहेगा. पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो आउटसाइड डायरेक्शन में होता है. कई बच्चे समझ नहीं, दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड. फील्ड मीन्स वेयर वी कैन feel the influence of anything. We are talking here charge particle, so where till that point where we can feel the influence of this charge particle. Okay or not? Okay, its electric field will be towards its center. Okay or not? Okay, so this is the electric field direction of static charge. We can say this is positive charge. If you are taking another positive charge towards it, what will happen? ये पूरा इसके पास पहुंचेगा भी नहीं, ये इसको थोड़ी दूर से ही क्या कर देगा, रिपेल कर देगा. अगर ये इसको थोड़ी सी दूर से रिपेल कर देगा तो इट मीन्स दैट यू कैन से अराउंड इट वन एरिया आर प्रेजेंट, one field are present by which this charge particle is repelling to this charge particle. Okay or not? Okay, you can say I am keeping here positive charge, if I am taking negative charge. अगर देखो यहाँ तक तो आप इसको लेके आ रहे हो, बट यहाँ से आगे आपको इसको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है. ये चार्ज पार्टिकल खुद पे खुद चल के इधर चला जाएगा. नो नीड टू अप्लाई फोर्स हियर to move this charge particle from this point to this point. So we can say this force which are present around this charge particle, so this will be its field. If this is a rest charge particle, so rest charge particle we can say that is the electric field. Electric field. Okay, now I'm talking about magnetic field. Which field? Magnetic field. In the case of magnetic field, I'm saying what? This is our wire. When you will connect this wire, we know that it has a large number of electron. Electron have not any particular direction. They are simply spread at all places in different direction. Okay, when you will connect this wire with electricity, what will happen? Electricity will apply force here.
will apply force here. देखो till that you will not apply, you are passing here electricity through this wire, nothing will happen. When you start applying electricity through this wire, so what will happen, this point will get electricity and that electricity will apply force on these electrons. What will happen after few minutes or few seconds, electrons will get fixed and particular direction. और ऐसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि इसके चारों तरफ एक फील्ड आ गया. वो फील्ड आपका कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है. विच फील्ड इट इज, मैग्नेटिक फील्ड. You can do one activity at home also. You can take iron nail. Okay or not okay? Okay na? What will you do? Around it, you will rotate. You will wrap copper wire and you will connect with the battery. Okay or not okay? And you will spread here some iron fillings. या फिर small piece of the iron. Okay, when you will switch on the key, what will you see, this all iron piece will climb this iron nail. हम देखेंगे कि जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराते ही इस आयरन नेल के चारों इधर उधर जहां पर भी उसको लगेगा पास में रहेगी, तो इसके साथ वो जो लोहे के टुकड़े थे वो इससे प्रॉपरली क्लिंग हो गए, स्टक हो गए. तो जैसे वो उससे क्लिंग हुई तो हमने यहाँ से आइडिया लगा लिया कि भाई जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया और इलेक्ट्रिसिटी पास करते इसके अंदर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड आते ही ये सारे इसके अंदर चिपक गए. तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, व्हेन वी विल पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर, थ्रू एनीथिंग, एनी मटेरियल like that, any metal, so it behaves like a magnet. It behaves like a magnet. Okay or not okay? So we can say here, so means electron, when we will switch on the key, what will we see, through the wire electrons start moving. They are not at static, they are not at a static position, simply they are moving from this point to negative point to positive point. So we can say this iron nail or means things will become will behave like a magnet only. So we can keep that in our mind by the help of electricity. We can create magnetic field. Okay, or this activity will help you for finding the magnetic field, a magnetic value. Okay, अब one thing also I'm talking here, this is the man-made magnet. One thing also I'm telling, first today's topic only on the natural magnet. Which topic? Natural magnet. सभी नेचुरल मैग्नेट के बारे में जानते हैं. एक ब्लैक कलर का मटेरियल आप यूज करते हैं. कई बारी एक पेज लेते हैं, पेज के नीचे उसको रख देते हैं, ऊपर कोई चीज चिपका देते हैं, और नीचे से जब आप उस मैग्नेट को घुमाते हैं तो ऊपर से वो सारा जो उसके ऊपर कनेक्टिंग मटेरियल है, आयरन का फॉर्मेशन, वो उसके साथ साथ घूमता है. ओके और नॉट ओके? तो वी कैन, तो दीज थिंग्स हैव सीन ऑलरेडी. तो ये दिस इज द दिस नेचुरल मैग्नेट इज द पार्ट ऑफ, या इज द सिंपली वन काइंड ऑफ आयरन ओनली. वी कैन से दैट इज द मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, limonite. Many types is there, but that is the magnetite. Or magnetite color is the black color. Okay, so this is the natural magnet, this is the natural magnet. Okay, अब ये मैग्नेट आपका बहुत सारे तरीकों से मिलता है. Many kinds you can see. Okay, that magnet which we will get through natural from the earth or ground, anything else. So this magnet is the natural magnet. We can convert this magnet in different form. Number one, that is bar shaped magnet. Okay. Number two, circular magnet. Circular disc magnet. Number three, number one is the bar shaped magnet, circular magnet, horseshoe magnet. So you can have many kind of it there related to the natural magnet. Okay, what will think also I'm just telling, इसमें भी दो चीजें आपको इंक्लूड करनी होती है. भी मैग्नेट एक चीज को दिखाता है, भी मैग्नेट पे
2 पोल्स होते हैं। मान लेते हैं हमें तो पता है कि एक पोल होता है, वी कैन से दैट इज द नॉर्थ पोल और सेकंड इज द साउथ पोल। वन इज द नॉर्थ पोल, सेकंड इज द साउथ पोल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बार मैग्नेट, इट्स वन कॉर्नर showing here north pole, second corner that is the south pole. One corner is north pole, second pole is the south pole. Okay or not okay? One thing, if this is north pole and this is south pole, this is north pole and this is south pole. Okay, जब एक बात ये भी आपको पता है भाई, सेम पोल विल रिपेल ईच अदर। अगर मैं इसके पास कोई नॉर्थ पोल लेके आऊं, किसी नॉर्थ पोल के पास दूसरा नॉर्थ पोल लेके आऊं, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैं इफ आई विल कीप नियर टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देन बोथ पोल्स विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो दिस इज द वन बेसिक थिंग, सेम पोल विल रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि सेम पोल कैन बी व्हाट, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, both will be repel. Okay or not okay? Clear now? And same thing I can say, different pole, this is the property of natural magnet, different pole will attract each other. We can say north south will attract together, south north also will attract to each other. Okay, same pole will repel each other and different poles will attract each other. Second thing also I am saying, if where एक आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है, साउथ पोल है। या फिर आप मैग्नेटिक नीडल भी ले सकते हो, वो भी मैग्नेट से बनी होती है। जब आप इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, ये अपने आप को कहाँ अलाइन करता है, जहां आपका नॉर्थ है, मतलब जहां ये जाता है एक पार्ट इसका, वो नॉर्थ हो जाता है, एक दूसरा पार्ट नीचे की तरफ वो क्या बन जाता है, आपका साउथ हो जाता है। क्योंकि हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसमें एक नेचुरल मैग्नेट छुपा हुआ है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिक पोल्स। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज अवर अर्थ। क्लियर? तो वन साइड ऑफ अर्थ दैट इज द नॉर्थ पोल, सेकंड इज साउथ पोल। अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो किसी न किसी एंगल पे जहां इसका नॉर्थ है, वहां आपका नेचुरल मैग्नेट आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, वहां आपका साउथ पोल चला जाएगा, और जहां आपका साउथ है वहां क्या चला जाएगा, नॉर्थ पोल। ये किसी न किसी एंगल पे जाएगा। ये आपका एंगल ऑफ डिप और डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन होता है। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में, देयर आई विल डिस्कस। तो वन थिंग, ये जो परमानेंटली होते हैं, अर्थ के होते हैं, दीज आर द ज्योग्राफिक पोल्स। ठीक है, और ये आपके नॉर्मल मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जिनको आप इंक्लूड करते हो। ठीक है, तो ये हमेशा अपने आप को उस डायरेक्शन में, जब आप फ्रीली इसको सस्पेंड करोगे तो आप ये इजिली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को दिखाएगा। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एज सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार आपने देखा होगा, ये अगर आपका नॉर्थ पोल है, इसके पास आप नॉर्थ पोल लेके जा रहे हो, तो दोनों के बीच में गैप होता है, ये इसके पास जाता ही नहीं। जैसे आप इसको आगे की तरफ बढ़ाते हो, ये थोड़ा और आगे चला जाता है। ठीक है, बिना टच किए। प्रीवियस टाइम आई डिस्कस देयर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इन नॉन कॉन्टैक्ट I did not discuss with you all. This is the previous school. One thing, listen. When you will keep this north pole to near to this north pole, what will happen? This north pole will repel to this north pole. Why? Because it's some area are present around it where we can feel its influence. Okay? जैसे आप इसके पास लेके जाओगे, देखो, अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ मतलब मूव किया, तो ये भी आपका आगे 1 सेंटीमीटर की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन ये गैप आपका ऐसे मेंटेन रहेगा बीच में। तो कहने का मतलब कुछ दूर तक इसका फील्ड है और कुछ दूर तक आपका पहले वाले मैग्नेट का फील्ड है। जहां पर इसका फील्ड होगा तो हम क्या कहेंगे, उसका फील्ड है। और किसकी वजह से, मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज दैट वेयर वी कैन फील द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. So we can say this is the that area which are present around the magnetic field. This will be the magnetic field of the magnet. Okay or not okay? Clear? Now just come on the magnetic lines. What are magnetic lines? These are the basic term of natural magnet only. Now first initially I discussed with you how will you make their electrical magnet, but this is the magnetic
lines. This is the magnetic portion, magnetic, natural magnetic portion. Magnetic lines I am going to discuss here. So one thing, listen. This is what north pole, this is what south pole. अब इसकी प्रेजेंस को आपको पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे? आपको क्या करना है, एक नेचुरल मैग्नेट लेना है, तो उसको क्या करना है, नेचुरल मैग्नेट को एक आयरन फिलिंग्स का मीनिंग होता है भाई छोटे छोटे टुकड़े, कह सकते हैं भाई पाउडर ऑफ आयरन, दैट आयरन पाउडर यू विल स्प्रेड ऑन अ कार्डबोर्ड या पेपर, यू कैन से लाइक इट. पहले वो पूरे पेपर में बिखरा पड़ा है, एकदम क्या करना आपको, ये मैग्नेट उठा के वहां पे रख देना ऐसे बिल्कुल. तो जैसे आपने रखा तो आपको क्या दिखेगा, आपको लगेगा कि जो आयरन फिलिंग्स थी वहां पे, वो उन्होंने उस मैग्नेट के चारों तरफ अपने आप को एक ऐसे लाइंस की फॉर्म में अरेंज कर लिया है. किस फॉर्म में अरेंज कर लिया है? लाइंस की फॉर्म में. समझ गया ना? तो वही मैग्नेट यहां पे शो करता है कि उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है. अराउंड एनी मैग्नेट देयर इज सम मैग्नेटिक लाइंस. ओके और नॉट ओके? अराउंड इट एज सेम लाइक इट. और जहां पे नॉर्थ पोल होगा वहां पे थोड़ी ज्यादा क्लोज रहेंगी, ठीक है. और in another part there will be those all lines will be distributed with some proper gap, equal gap at all places. Okay, second thing I can do here, आपको एक मैग्नेट लेना है, properly I have to explain. This is one kind of activity, you can do it at home. ये आपको एक मैग्नेट, this is the north pole और this is the south pole. और आपको इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए what will you do? You will take help of magnetic compass. और यू कैन से मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल विल बी एज सेम वन वॉच टाइप होती है ये, ऐसे की तरह, ऐसी ये तीर का निशान होता है आगे, इसमें वो पीछे की तरफ उल्टा होता है, आगे तरफ ऐसा आ रहा होता है. ये मैग्नेट से बनी होती है. और ये आपका नॉर्थ पोल होता है, इसमें नीचे की तरफ जहां एरो होता है वहां पे नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस मैग्नेटिक नीडल को लेना है. ठीक है, और जैसे आप इस मैग्नेटिक नीडल को लोगे तो आपको क्या करना है, इस मैग्नेटिक नीडल को इसके पास रखना है. जैसे आप इसको इसके पास रखोगे तो क्या करेगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल को दूसरे को रिपेल करेगा. तो मैग्नेटिक नीडल आपकी, मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा, ऐसे हो जाएगी. तो वहां पे आपको लिख देना है कि दिस इज द पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, अब आप इस मैग्नेटिक नीडल को हटा लेना है. ठीक, जैसे मैग्नेटिक नीडल को हटाओगे तो दोबारा मैग्नेटिक नीडल को वहां पे रखना है जहां पे अपने पिछले पॉइंट का, वेर यू राइट द सेकंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वन. क्लियर? कीप दिस मैग्नेटिक नीडल हियर. और तुम मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखोगे तो कैसे होगा ये, यहाँ तक जाके थोड़ा सा फोर्स कम होगा ना, तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यू विल सी देयर फोर्स इफेक्ट विल बी लिटिल बिट डिक्रीज ऑफ नॉर्थ पोल ओनली. व्हाट विल हैपन, तो इट विल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल बी अपसाइड ओनली, एज सेम लाइक इट. So this point is C or this point is B. Okay or not okay? Same thing you will put here. So magnetic needle will be as same like it. Magnetic needle as same like it. Okay. ऐसे. तो ऐसे तक अब जा रहा है. अब यहाँ पे नॉर्थ पोल दूसरी साइड चला गया, नॉर्थ पोल दूसरी साइड चला गया और साउथ पोल दूसरी साइड. तो लास्ट में आके यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या बन जाएगा साउथ पोल. तो ये आपके लास्ट पॉइंट है. तो जब आप इन लाइंस को ऐसे, यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट नॉट फॉर वन लाइन, तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट वन अरेंजमेंट लाइक इट. क्लियर? along with it I am explaining the properties also. क्लियर? और जो नॉर्थ पोल वाली हैं वो हमेशा ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, इसमें भी ऐसे की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ. ओके, हमेशा एक चीज याद रखना, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. वन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या करती है, नॉर्थ पोल से तो बाहर की तरफ आती हैं और साउथ पोल में क्या करती है, अंदर की तरफ एंटर करती हैं. ये चीज मैंने आपको बताया नहीं शायद. जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्कस किया था आप लोगों से, तो इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस विल कम आउट. ओके और नॉट ओके? और सो दिस कैन बी बिहेव लाइक नॉर्थ पोल. तो फ्रॉम नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइंस विल कम आउटसाइड, वन काइंड ऑफ डोनेटिंग प्रॉपर्टी. और फॉर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इनसाइड एंड फॉर साउथ पोल ऑल मैग्नेटिक लाइंस विल बी towards its center. Clear? So these things you have to keep in your mind.
Okay, so we can say magnetic lines will come out from North Pole and enter through South Pole. So coming out from North Pole or enter through South Pole. So this is the magnetic lines arrangement for a magnet. This is the magnetic line arrangement for a magnet. Okay or not? Okay. So one thing also going to discuss here. See, magnetic lines arrangement outside the magnet. ये पिछली बार क्वेश्चन आया था भाई एग्जाम में. सेकंड, मैग्नेटिक लाइंस अरेंजमेंट इनसाइड द मैग्नेट. इनसाइड द मैग्नेट. ओके, तो फॉर आउटसाइड, लिसन, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. ए मैग्नेटिक लाइंस विल कम आउटसाइड ऐसे, मूव्स इनसाइड लाइक इट. These are the north to south, these are the north to south. Clear? तो outside magnetic lines from north to south direction. Okay or not? Okay, north to south direction. Okay, inside the magnet, ये अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है. देखो ये बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे घूम के भाई, घूम के ये अंदर ऐसे जाएंगे, ऐसे बता रहा हूं. देखो ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे करके एक ऐसा सर्कल बनाती है कंप्लीट अंदर भी, और ऐसे नीचे की तरफ बनाती हैं. समझ गए ना? यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ये दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और अंदर से ऐसे जाती हैं, पूरा सर्कल ऐसे. इसमें भी सेम ऐसे की तरफ, ऐसे 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 घूम के अंदर की तरफ. तो इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnetic line should be from south to north pole. This is the second property. Outside the magnet, north to south, or inside the magnet, south to north. Okay or not? Okay. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर नेचुरल मैग्नेट. वन ऑल्सो बेसिक थिंग. अब एक बात आपने देखी होगी कि आपका जो ये मैग्नेट है, this is the north pole, this is south pole. Here at this point magnetic lines are very close to each other. कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जो आपका नॉर्थ पोल, जहां पे पोल्स आपके, वहां पे देखो रुको एक मिनट, अभी बता रहा हूं, एक मिनट. ओके, तो ये वैसे पैरेलल होती हैं, ये थोड़ा मेरा बनाने में हो गया, सारी लाइंस पैरेलल होती हैं. ओके, अब एक चीज सुनिए, इस क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जब आप इसके चारों तरफ कीले बिखेर देंगे, nails you will spread around it there, what will you happen? Maximum nails will cling here is very less amount. मान लिया अगर बाई चांस आपके पास 20 हैं तो 7 8 यहाँ पे आ जाएंगी, 7 8 यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 या 4 ही आएंगी. तो क्वेश्चन क्या आता है भाई, वाई, क्यों होता है ऐसा कि कॉर्नर पे जहां नॉर्थ और साउथ पोल है वहां पे ज्यादा से ज्यादा कीलें चिपकती हैं और कहीं पे नहीं चिपकती? ऐसा क्यों होता है? एक बात सुनो, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कितनी सारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, यहाँ पे देखो कितनी सारी मैग्नेटिक, दिस इज इन्फ्लुएंस कम्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक, वेयर लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विल प्रेजेंट, सो देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड टू मच स्ट्रॉन्ग. ओके, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे यही रीजन है कि बहुत ज्यादा कीलें चिपकती हैं और ऊपर और नीचे आपकी कीलें बहुत कम चिपकती हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर नीचे मैग्नेटिक लाइंस बहुत कम होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं. इसी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है और पॉइंट पे इसका इफेक्ट विल बी वेरी लेस. ओके, सेकंड पॉइंट ऑल्सो आई एम सेइंग, एक बात देखिए, देखो हर एक लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे के, एक बिल्कुल पैटर्न होता है. वैसे तो ये बात है कि जैसे आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, लाइन्स ये देखो यहाँ पर बहुत शुरू में तो बहुत क्लोज होती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे तो आपकी लाइनों के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो जाता है. देखो यहाँ पे तो कितना कम है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया और यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़ गया. इसके पीछे एक रीजन है, जितना आप मैग्नेट से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा, ठीक है, और तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. जैसे कि आपने पता है इसका एक फॉर्मूला होता है 1/r², ये बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जितना आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जितना दूर रहेंगे आप मैग्नेट से, उतना ही मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, डिक्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर.
क्लियर? ये तो आप खुद भी देख सकते हो यार। मान लिया आपके पास यू हैव टू मैग्नेट, वन इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। साउथ पोल आप यहाँ पे रख रहे हो कि अट्रैक्शन आएगा? नो। धीरे धीरे लेके आओ लेके आओ, कई टाइम आएगा यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स आएगा, थोड़ा ज्यादा फोर्स, जैसे आप पास पहुंचोगे एकदम से चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब वी कैन से व्हेन यू विल कीप द मैग्नेट नियर टू एनी पोल, तो इट विल अट्रैक्ट वेरी फास्टली बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो when you will move away from the magnet, distance will increase, so magnetic effect will decrease along with it. Okay or not? Okay. Same thing you can keep in your mind also. Means when we will move far away from the magnet, the magnetic field effect will decrease due to its distance. So we can say magnetic field strength inversely proportional to the distance. Okay or not? Okay. So same thing, very important topic of today and last topic, why magnetic field lines do not cross to each other. क्यों नहीं? ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था। Why इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर? मैग्नेटिक लाइन्स क्यों नहीं एक दूसरे को काटती हैं? एक बात सुनिए, ये देखो, ये एक पहली मैग्नेटिक लाइन्स है, ये दूसरी है, दूसरी ऐसे जानी चाहिए ना, लेकिन हमने कहा बाय चांस वो काट रही है एक दूसरे को। अब देखो ये है, ये आपकी ऐसे दूसरी लाइन है, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है, ये वाई दीज टू लाइन्स आर नॉट कटिंग टुगेदर एट वन पॉइंट, व्हाट इज द रीजन? मैंने आपको पहले बोला था कि कोई चीज जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, ओके और नॉट ओके, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ, तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए मोशन की, तो हम क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। व्हाट विल वी ड्रॉ? टेंजेंट। तो दिस टेंजेंट विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, will tell the direction of motion only. तो you can take here, ये पहली लाइन है, सर्कल बना सकते हैं, तो मैं बना नहीं रहा, कर्व में तो है, दिस इज अवर सेकंड लाइन, तो दिस ऑल्सो कर्व। तो अगर मैं इसकी इस पॉइंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करूं, तो मैं यहां पे क्या ड्रॉ कर दूं? ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसकी डायरेक्शन नीचे होगी। अगर मैं इसी पॉइंट की यहाँ पे, इस देखो वैसे तो पॉइंट एक है, लेकिन वी आर इंक्लूडिंग ये टू लाइंस ना, तो वी कैन से इफ वन लाइन इज मूविंग अपसाइड, सेकंड इज डाउन साइड, व्हेन आई विल ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ दिस लाइंस, तो वी कैन गेट दिस डायरेक्शन ऑफ हियर, दिस लाइन, फर्स्ट लाइन। फॉर सेकंड लाइन, तो एट सेम पॉइंट आई विल गेट डायरेक्शन हियर, दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये सेकंड टेंजेंट। ओके और नॉट ओके? अब एक बात सुनिए, एक बंदा एक पॉइंट से क्या एक साथ दोनों साइड मूव कर सकता है? एनी पर्सन कैन मूव फ्रॉम वन बाय यूजिंग वन पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके और नॉट ओके? तो सिंपली एक पॉइंट की डायरेक्शन एक ही हो सकती है, या तो ये मैग्नेटिक लाइंस नीचे की तरफ जा सकती है, या मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, अगर बाय चांस वो कट कर जाए, तो वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इसका मतलब दो डायरेक्शन लेके चल रही हैं, टू टेंजेंट, one this one and second this one. If two tangent means two direction, or two direction means motion in two direction at one time only, at once, which is not possible. तो वी कैन से एक पॉइंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है, तो इसलिए अगर दो पॉइंट पे कट करेगा तो दो डायरेक्शन बनेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक, तो नहीं मतलब एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट से टू लाइन विल पास, और दैट गिवन पॉइंट विल नॉट शो देयर टू डायरेक्शन। Okay or not okay? So this is the very important thing. तो even one single point will not show their two direction. तो इसलिए magnetic lines कभी कट नहीं करती. Same reason you will write in the case of electrical line also. Okay? तो you can take a different example for natural magnet. That is the magnetite. Magnetite. Okay or not okay? Its color is black. और जो चीजों को अट्रैक्ट करता है, ये आपका बार के बारे में मैंने डिस्कस किया। सेकेंड थिंग आई एम डिस्कसिंग अबाउट हॉर्स शो मैग्नेट। हॉर्स शो मैग्नेट इस तरीके से बनता है, ठीक है ना? आपकी बुक में भी डायग्राम दिया होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल। ठीक है, इसमें भी वही चीज होती है। मैग्नेटिक लाइंस कहां से कहां जाती है? मैग्नेटिक लाइंस विल मूव फ्रॉम, वैसे तो ऐसे 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 आगे की तरफ मूव करती हैं, बाहर की तरफ, ठीक है ना? इसमें अंदर की तरफ मूव करती हैं, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही बनता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे ऐसे बनता है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। Okay or not okay? So same thing you can say. Question also can come in the examination. In the natural magnet, horseshoe magnet is very, means the most strongest or powerful, but bar magnet not. Why?
इन बार मैग्नेट में आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, तो पावर यहाँ पे ज्यादा है, पावर यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे पावर बहुत कम है बीच में। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी कीलें चिपक गई, यहाँ पे बहुत सारी कीलें चिपक गई, तो इसका मतलब ये दोनों इतने दूर दूर है कि इनका इन्फ्लुएंस कम होगा, ठीक है। लेकिन इसके नॉर्थ और साउथ पोल बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ड्यू टू दिस क्लोजनेस देन पावर विल बिकम डबल, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारी कीलें एक साथ चिपकाएगा। ओके और नॉट ओके? तो वी कैन से हॉर्स मैग्नेट इज मोर पावरफुल इन कंपेरिजन ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, तो आई एक्सप्लेन हियर नेचुरल मैग्नेट completely. If you will get any doubt, you can ask to me about doubt discussion in Zoom class. Okay, bye.